to everyone. Today, I'll tell you about Gauss theorem. Last day also, the application of Gauss theorem we have started. One application we have done already, that to find electric field due to a point charge. The electric field due to a point charge E is equal to K Coulomb constant into Q divided by R squared. This Coulomb constant, every time we are using 1 upon 4 pi epsilon naught. Now, today again one more application we will start with, that to find electric field due to infinite line charge. Infinite line charge. You try to understand what is infinite line charge. Say this is your infinitely long, and here plus charge is lying, plus. Now, how charge is distributed here? In infinitely long charge, infinitely long line charge. This is the source of charge, and you have to find electric field due to this. Now, one thing I'll tell you, that it is very easy to find the electric field due to point charge by the use of Coulomb's law also, by the use of Gauss theorem also. Now, every time in daily life, the charge is not focused to a single point. The charge may be distributed. The distribution of charge may take place in three ways. Number one, the charge may be distributed along length or along line. The charge may be distributed along surface area. The charge may be distributed along volume. So we have to find, particularly in class 12 syllabus, the three sources of distributed charge that will deal here. First is electric field due to infinite line charge. Then second one is electric field due to infinite seat of charge, where the charge is distributed along area. And third one, the charge is distributed on the spherical cell. So all three applications of Gauss theorem are included in the syllabus. So one by one we will see what is electric field due to infinitely long line charge. Okay. The first, the distribution of charge you see here. First, how charge is distributed here? The charge is distributed along length. Okay. So this is linear charge distribution. So here, one term we will introduce here, linear density of charge. Linear density of charge. That is lambda. Lambda is equal to Q upon L. This is what linear density of charge, and lambda is equal to Q upon L. Its unit is what? Coulomb per meter. Okay, Coulomb per meter. अब इसमें देखें कि जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे यहाँ इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम L का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं लेंगे, एक छोटा सा कोई लेंथ ले लेते हैं कहीं भी, और फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ देखते हैं उतने लेंथ में कितना चार्ज है, एंड देन अकॉर्डिंगली विल फाइंड लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ. Any segment you can take. Now, how will you do this one? How to find electric field? This you try to understand well, and it will be easy to find electric field due to infinite
long charge by use of Gauss theorem. For this, we will take a Gaussian cylinder of length L and radius R. Take a Gaussian cylinder. Take a Gaussian cylinder of radius R and length L. So we have to find electric field at a point P and lying at a distance R. हमको इस पॉइंट पर इस इन्फिनिटली लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब हम क्या करते हैं, तो हम L लेंथ का एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करते हैं. दिस इज गॉसियन सिलेंडर, L लेंथ का, माइंड यू, L लेंथ का, और ये जो है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है. Okay, so we have taken a Gaussian cylinder of length L. Now you look at here कि अब हम इसको करेंगे क्या कि अब हम देखेंगे कि इस गॉसियन सिलेंडर से कितना फ्लक्स आउट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेक्शन लेते हैं इस पॉइंट पर जिसका एरिया है, सेक्शन का एरिया ds. ये है एरिया वेक्टर. ओके, सेक्शन का एरिया क्या है, ds, और ये है इसका एरिया वेक्टर. और इस पॉइंट पर अगर हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे यहाँ पर, तो आप सोचो कि अगर हम +1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखें तो वो किधर जाएगा, तो नेचुरली वो राइट साइड जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी तरफ है. दिस इज वन पार्ट. अब हम एक सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन पर भी लेते हैं. ये है हमारा सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन पर ये इसका एरिया वेक्टर. ओके, दैट मीन्स व्हाट, वी आर कंसीडरिंग सेक्शन एट 2 पॉइंट्स. दिस इज P पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू कैन कंसीडर P डैश. ओके, तो दोनों का जगह कहाँ पर है, एक हम P पॉइंट पर लिए, एक P डैश पॉइंट पर लिए. P जो है वो कर्वेचर पर है, सिलेंडर के कर्व पोर्शन पे है, जबकि P डैश पॉइंट वी हैव टेकन एट द क्रॉस सेक्शन. तो ds का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी पॉइंट पर अगर हम +1 कूलम चार्ज रखें तो इधर की ओर जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया. So what is angle between them? Angle between them is 90 degree. So what does it prove? It simply prove, अब बताएं कि इस सेक्शन से फ्लक्स कितना निकलेगा. तो फ्लक्स थ्रू the section taken at point P dash is 0. Why 0? So because phi, d phi you can write E ds cos theta. So here theta is 90 degree, so this flux becomes 0. So this simply you have proved that there is no electric flux passing through the section of this Gaussian cylinder. No electric flux passes through the section of the cylinder. Okay, Gaussian cylinder you can say. कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सेक्शन से नहीं पास कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री. लेकिन अगर सेक्शन यहाँ पे लेते, यानी कर्वेचर पर जब ले रहे हो, तो वहाँ पे E और ds इसके बीच का एंगल 0 है. तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इस गॉसियन सिलेंडर से कितना निकलता है. नाउ लुक एट हियर. तो अब ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
electric flux through the section at point P. d phi is equal to E ds cos 0 degree. Okay, cos 0 is 1. Now the entire flux passing through the curvature of the cylinder, the total flux through the curvature or Gaussian cylinder also you can write. So d phi you integrate, this is what? E ds. So this is what? E into S. What do you mean by S? S क्या है? इस कर्वेचर का सरफेस एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन से कोई फ्लक्स नहीं निकलना है, तो आप टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? फाई इज इक्वल टू E into 2 pi R L. Phi is equal to E into 2 pi R L. So, okay, very good. Now you look at here, this is your equation 1. तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतने चार्ज का, ध्यान रखें कि हमने पूरे चार्ज को इनक्लोज नहीं किया है। इसका कारण ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम पूरे चार्ज को इनक्लोज करें। इवन ए पोर्शन ऑफ चार्ज इज इनक्लोज्ड, इट विल गिव यू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू इनक्लोज ऑल द चार्जेस हियर। तो एक तरीका हुआ हमारा फ्लक्स निकालने का कैलकुलेशन में, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सिलेंडर से जो पास होगा वो E इंटू 2 पाई आर एल है। अब दूसरा तरीका है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन? बाय गॉस थ्योरम, total electric flux passes through Gaussian cylinder is, तो फाई इज इक्वल टू, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 by epsilon naught times the charge enclosed, let the charge enclosed by the cylinder is Q. Q चार्ज, ये सारे चार्ज को नहीं इनक्लोज करा, Q चार्ज को इनक्लोज करा। तो Q को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो अभी हमने लीनियर डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था, तो लीनियर डेंसिटी यहाँ पे है Q बाई L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। So one formula you have seen this one, one formula you have seen this one, and both are the formula of electric flux. So what we will do? We will equate these two formula, or then we will find the formula for electric field. Look at carefully. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो E इंटू 2 पाई आर एल, तो देखना E इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज फ्लक्स बाई कैलकुलेशन मेथड, this is flux by the use of Gauss theorem. This is lambda L by epsilon naught. It's okay. So what is E? E is equal to
Now you see here, L will be cancelled. 1 by 2 pi epsilon naught into lambda upon R. Okay? Lambda upon R. Now look at here. Lambda gives you by the knowing of a charge per unit length. Correct? You can take a small length also, no problem here. No need to take entire charges in the Gaussian cylinder. So this is a much important formula that E electric field due to line charge is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda by R. This is another formula that you look. This happens for electric field due to infinite line charge. अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसको ध्यान से देखना. How will you find electric field due to finite line charge? That's the important thing. How will you find electric field due to finite line charge? This is much important part that you have to. Although it is not mentioned in your syllabus, but you try to understand. अब इसको समझने की आप कोशिश करें. जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ओके, और यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है. यहाँ पे क्या है? तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L. तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जिसका लंबाई है dl. लंबाई क्या है इसका? dl. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? dE. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ चार्ज? ये जो सेक्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो ये हुआ आपका dE का डायरेक्शन. करेक्ट? क्योंकि यहाँ +1 कूलम चार्ज रखें और ये एलिमेंट को सोच के हम सिर्फ इस एलिमेंट का सोच रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? dE. अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर देते हैं. से दिस एंगल इज थीटा, कुछ देर के लिए माने. तो ये क्या होगा? एक कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा dE cos थीटा, इसके डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? dE sin थीटा, जिसके डायरेक्शन इधर की तरफ. ओके? तो अब देखो dE cos थीटा जो है, सिंस इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज गोइंग अवे, और dE sin थीटा का डायरेक्शन इधर की तरफ. करेक्ट? अगर हम वैसे ही सेक्शन इस सेंटर से उतना ही दूरी पर इधर लिए रहते तो क्या होता? तो ये होता कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता उसका डायरेक्शन होता इधर की तरफ. फिर उसको अगर हम कंपोनेंट करते तो dE cos थीटा उधर होता. ठीक है? इसको आप यहाँ पे दो dE. ओके. तो इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता, उसका भी कंपोनेंट dE cos थीटा, dE sin थीटा. ओके? हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट हजारों होगा, इसमें यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, तो हम साइन वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और कॉस वाला भी निकाल लेंगे. ओके? साइन वाला भी और कॉस वाला भी. नो, रिमेंबर हाउ टू डू दिस वन. तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम करें साइन वाला. तो सपोज करो कि ये एंगल है φ1 और ये एंगल है φ2. दिस इज योर φ2. ऊपर वाला एंगल φ1, नीचे वाला एंगल जो है वह है φ2. तो हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो एक होगा E परपेंडिकुलर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E पैरेलल. ओके? तो E परपेंडिकुलर बराबर
इसकी मैग्नीट्यूड बता रहे पहले, k इंटू लैम्डा अपॉन आर, ओके, k इंटू लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस what is साइन फाई 2, और E पैरेलल जो होगा वो बराबर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, दो फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, दैट वी विल मेक इट क्लियर हियर। अब हम एक चीज बात करें, फिर इसको हम एक अच्छा से डायग्राम बनाएं एंड ट्राई टू फाइंड दिस इज योर, यहां पे एक पॉइंट है P, डिस्टेंस है R, ये है एंगल फाई 1 और ये है एंगल फाई 2, ओके, ठीक है। ये एंगल है फाई 1, ये है एंगल फाई 2। फॉर्मूला है आपको E परपेंडिकुलर इक्वल टू k लैम्डा बाय r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, E पैरेलल इक्वल टू k लैम्डा बाय r cos फाई 2 माइनस cos फाई 1। फाई 2 दिस एंगल और फाई 1 ऊपर वाला एंगल। अब एक चीज ध्यान रखें, अगर E परपेंडिकुलर का हमें डायरेक्शन पूछे, पहले डायरेक्शन की ही बात करें, तो अगर हमको डायरेक्शन पूछे तो E परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अगर ये प्लस चार्ज, अगर माइनस चार्ज हो तो उलट लेना, हम सिर्फ प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस चार्ज है, इट विल गो अवे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E परपेंडिकुलर। E पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिंपल सा ध्यान रखना कि जो पोर्शन बड़ा लेंथ है उसका अपोजिट होता है, तो बड़ा वाला तो लाइन ये है ऊपर वाला, तो E पैरेलल का डायरेक्शन ये होगा, बड़ा वाला लेंथ। अगर अनइक्वल बटा हो तो, इक्वल बटा हो तब तो जीरो हो जाएगा, तब तो ना पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ही नहीं। अनइक्वल हो तो बड़ा वाला लेंथ का अपोजिट होगा, इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये E पैरेलल का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है E परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला यहां प्रूफ किए थे, क्या इससे ये प्रूफ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो कि ये इनफिनाइट लंबाई है, तो फाई 1 का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। फाई 2 का वैल्यू क्या होगा? ये भी 90 डिग्री। मैक्सिमम बढ़ के कितना हो सकता है? ये फैलाते जाओ, फाई 1 का वैल्यू बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू होगा 90 डिग्री, इसका भी होगा 90। तो अगर हम उसमें वैल्यू रखें तो देखो cos 90 माइनस cos 90, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E परपेंडिकुलर क्या होगा ये बताएं, फॉर्मूला देख के, K इंटू लैम्डा बाय आर इंटू साइन फाई 1 साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, so this is 2, so this formula will come। अब ये इससे कैसे मैच करता है जो हम गॉस थ्योरम से निकाले हैं? तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला ये है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। आप देख लें, दिस इक्वल्स K का वैल्यू आप रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर इंटू 2, तो 2 ये कैंसिल होएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट into lambda by r, is okay। so this is the formula that you have to, इसकी प्रूफ भी है, आपने प्रूफ कर लेना है कि साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके पूरा वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना, आई विल प्रूव आल्सो, बट दिस कंक्लूजन यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब देखो साइन फाई वन और फाई टू का जो एंगल है वो ध्यान से देखना। सपोज करो एक और सवाल इसमें करते हैं कि मान लें कि आपके पास एक लाइन चार्ज है, फाइनाइट लाइन चार्ज, और ये पॉइंट पी पॉइंट यहां पे, ओके। तो आप हमको ये बताओ कि ये जो है ये तो फाई वन होगा, ओके। तो आप हम फॉर्मूला तो दिया हुआ है आपको, तो हमें बताइए कि फाई वन का वैल्यू क्या। तो फाई वन इज इक्वल टू, मान लो 40 डिग्री कर दें, तो फाई वन इज 40 डिग्री। व्हाट इज फाई टू? तो फाई टू इज 0 डिग्री। फाई टू इज व्हाट? 0 डिग्री, क्योंकि जो ये एलिमेंट है इसको अगर मिलाओगे तो इस पॉइंट से दूरी जो होगा वो तो वही का होगा। और फाई वन फाई टू का दूरी देख लो कैसे होता है। ये है, मान लो ये आर, तो ये लाइन जो आप ज्वाइन करते हैं अपर एंड को मिला के, वो आपके आर से, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उससे कितना एंगल बनाता है, वो है फाई वन। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो दूसरा एंड मिलाते हैं उसका एंगल ये है फाई टू। दिस इज फाई वन। तो फाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप इसकी वैल्यू आप फीड कर दें एंड यू विल गेट द आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमको एक चीज बताएं, दिस इज लास्ट पार्ट, आई विल आस्क यू, और आप सोच के बताओ कि सपोज करो कि ये फाइनाइट लेंथ है और ये है पॉइंट, इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं। दिस इज योर 30 डिग्री और इसको भी ऐसे मिलाते हैं। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज फाई वन एंड व्हाट इज फाई टू इन दिस केस। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, इसको स्क्रीन पॉज कर लेना और फाई वन फाई टू का वैल्यू हमको बताना। तो याद करो कि फाई वन हम कैसे निकालते हैं। तो फाई वन निकालने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हुआ फाई वन, वेरी गुड, ये हुआ फाई टू। हाँ, यानी जो अपर एंड है उसको मिलाते वो अपर एंड जो है इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाता है, करेक्ट। तो अपर एंड ये है और परपेंडिकुलर ये है, दिस। सो व्हाट इज फाई वन? ये हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। परपेंडिकुलर से द लाइन ज्वाइनिंग अपर एंड, फिर परपेंडिकुलर से द लाइन ज्वाइनिंग द लोअर एंड। तो परपेंडिकुलर तो यहां है, द लाइन ज्वाइनिंग, तो फाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? समबडी हैज आइडिया? बताएं, यहां से चलें, परपेंडिकुलर चलें एंड द लाइन ज्वाइनिंग द लोअर एंड, तो कुल मिला के ये एंगल हो जाएगा 330 डिग्री। या फिर आप बोल सकते हो इसको और -30 डिग्री अगर इधर से जाएंगे तो, ओके। सो दीज आर द फैक्ट्स, दिस विल बी यूजफुल फॉर योर कंपटीशन पर्पस ओनली। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन टुडे विल डील हियर and this you try to understand carefully. Now the second application is electric field due to infinite sheet of charge. Electric field due to infinite sheet of charge. तो पहला चीज हमें बताएं, हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं हमारा एक शीट ऑफ चार्ज ये है और इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ओके। दोनों तरफ ये ध्यान में रखना, दोनों तरफ प्लस क्यू चार्ज।
इसकी एरिया है ए, सीट की, नहीं सीट की एरिया नहीं लेते क्योंकि इन्फिनाइट सीट है, तो और उस पर पूरा चार्ज भी हम नहीं लेते। हम बात करेंगे कितना तक क्यू है वो आगे बात करेंगे। दिस इज इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्वेश्चन इज हाउ योर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, कैसे? चार्ज is distributed along surface। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म यूज करेंगे। पहले लैम्डा यूज किए थे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, सरफेस चार्ज density, because charge is distributed here along area. So sigma is equal to q upon area। छोटा सा कहीं का चार्ज हम ले लें, पूरे का हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इन्फिनाइट सीट है। q अपॉन एरिया, इसका यूनिट होगा कूलम मीटर स्क्वायर। नाउ यू लुक हियर, ये लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। So let we have considered an infinite sheet of charge whose surface charge density is sigma, and sigma is q by a, and this is coulomb per meter square। Okay? Now अब हम इसको एक गॉसियन सिलेंडर से कवर करेंगे। So sigma is surface density of charge। तो आपको लिखना पड़ेगा कि let us consider an infinite sheet of charge whose surface density is sigma, correct? Surface density is sigma, इतना लिखें। Take a Gaussian cylinder, इसके सेंटर से हम एक पॉइंट लेते हैं P। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट है P। ठीक है, ये मेरा मतलब मसला है, यही काम करना है। वी हैव टू फाइंड, लेट अस कंसीडर दिस इज लाइंग एट ए डिस्टेंस x दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण? इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण, जिसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है? सिग्मा। ओके, नाउ यू सी केयरफुली। अब करेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम दो सेक्शन लेंगे। एक सेक्शन, ये सेक्शन का एरिया है ds, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया उसी डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह इसके क्रॉस सेक्शन से निकलेगा। अब कर्वेचर पर ध्यान लो, यहाँ भी एक सेक्शन ले लो, जैसे वहां हम लोग किए थे, दो जगह लिए थे। कंसीडर दिस पॉइंट इज P डैश। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दिस। तो बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। It proves that no electric flux will pass through the curved portion of this cylinder. So here phi is 0. Why 0? Because E ds के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि no electric flux will pass through the curvature of Gaussian cylinder। यहाँ पे उल्टा होगा, तो वो लाइन लिखना पड़ेगा, no electric flux passes through the curvature of Gaussian cylinder। Okay, no electric flux will pass through the curvature of Gaussian cylinder। Now we will see
the how much electric flux will pass through the cross section. That is our main duty. तो पहले आप हमें बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सेक्शन से कितना पास होगा. पहले लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the section, how much. तो हम लिखेंगे d phi is equal to E into ds. करेक्ट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि cos 0 1 होगा. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन. तो d phi टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian cylinder or the cross section. Anyway you can write. Integrate करें. d phi is equal to E into ds. यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करना. क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन इधर भी है और इधर भी है. जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा. तो ये बात ध्यान रखना. वी आर मल्टीप्लाइंग ट्वाइस ऑफ ई डी एस. ds का इंटीग्रेशन सिंपल है, s होगा. ओके, so total electric flux phi is equal to 2 into E into S, या आप लिख सकते हो 2 into E into A. A is what? Area of cross section. याद रखना, S के जगह हम area of cross section लिख दिया. Okay, S means total cross sectional area, so area of cross section is S. Now you come here. This is one way to find electric flux. तो इसको हम इक्वेशन 1 कर दें. अब गॉस थ्योरम भी बताता है कि इस गॉसियन सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा. तो फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to Q upon epsilon naught. What is Q? तो अभी हमने आपको बताया था कि एक टर्म लेंगे सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A. यानी ये जो सिलेंडर है वो Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो Q अपॉन A जो होगा वो होगा इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज. तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए. करेक्ट, Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए. नो प्रॉब्लम. अब आप हमको ये बताओ, बोलो भाई, कि दोनों इक्वेशन को आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा गॉस थ्योरम से? पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था इक्वेशन 1 का? phi इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ई इंटू ए. ओके, ट्वाइस इंटू ई इंटू ए. गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था? phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह हम लिखेंगे सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. ये इक्वेशन 2 हुआ और ये इक्वेशन 1. दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है. दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 2 से 2 इंटू ई ए बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. ए कैंसिल हुआ, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फॉर्मूला में देखें कि ये x दूरी पे डिपेंड नहीं करता. x का वैल्यू क्या हो उससे कोई ना, सिर्फ सरफेस डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है. ओके, सो दिस इज मच इम्पोर्टेंट. अब इसको हम थोड़ा और समझे बढ़िया से कि किसी इनफाइनाइट सीट के कारण, सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब हम लोग 3 फॉर्मूला प्रूव किया. ध्यान दें, क्या फॉर्मूला था?
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था E 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। और तीसरा फॉर्मूला हमने प्रूव किया कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ लुक एट द फॉर्मूला केयरफुली। अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, इसमें ध्यान से आप देखो कि एक ग्राफ ड्रॉ किया है E का, किसके साथ? R के साथ, करेक्ट। इस ग्राफ में 3 ग्राफ ड्रॉ कर दिए। एक ग्राफ ये है, हटाना नहीं है। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ओके, 3 ग्राफ। आपको बताना है कि तीनों जो ग्राफ है उसमें जो सोर्स ऑफ चार्ज है वो क्या है। अब ये तीनों फॉर्मूला हम आपको डाल दिए। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज, दिस इज फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दिस इज फॉर इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। एक चीज आप देखें, E जो है आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E जो है R का। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, ध्यान देना। आपको एक पिक्चर देखे होंगे तारे जमीन पर, तो उसमें क्या है कि एक लड़का है जो उसको कुछ प्रॉब्लम है, जिसको कोई याद ही नहीं रहता कोई चीज़। तो आमिर खान उसके घर पे जाता है पता करने के लिए कि एक्चुअली उसकी बीमारी क्या है। तो जब उसका होमवर्क ये सब कॉपी चेक करता है तो आप ध्यान देना कि वो कुछ एक ड्राइंग बनाता है जिसमें मदर है, फादर है और 2 भाई हैं। अगर आपको याद होगा तो आप याद करो उसको। तो फिर आमिर खान क्या करता है, धीरे धीरे पेज पलटते जाता है उस ड्राइंग का। तो उसमें देखना कि माँ बाप तो पूरे ड्राइंग में है, धीरे धीरे जो उसमें 2 भाई है उसमें एक भाई दूर होता है, और लास्ट में देखना, लास्ट डायग्राम में एक भाई रहता ही नहीं है। ओके, रिमेंबर। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको इसमें तीनों ग्राफ का लिखना है। ये जो ग्राफ 1 है इसका सोर्स ऑफ चार्ज क्या है, इसका सोर्स ऑफ चार्ज क्या है, और इसका सोर्स ऑफ चार्ज क्या है। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन पुट देयर केयरफुली। दिस इज वन पार्ट। दूसरा चीज जो समझने की है यहाँ पे, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमने इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगर हमें हमारे पास पैरेलल सीट ऑफ चार्ज दे दे, दिस इज योर ए एंड दिस सीट इज बी, और इसका सरफेस डेंसिटी है सिग्मा ए और इसका सरफेस डेंसिटी है सिग्मा बी। ओके, अब हमको ये बताओ कि ये हुआ रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। तीनों साइड में हम दोनों सीट, पैरेलल सीट ऑफ चार्ज है, दोनों सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो एक सीट के कारण क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट यू हैव डन दैट E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज प्लस वी आर कंसिडरिंग, दिस इज प्लस वी आर कंसिडरिंग। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जिस रीजन में आपको निकालना है, अगर वो रीजन सीट के लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ले लो, अगर वो रीजन सीट के राइट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ले लो। क्योंकि लेफ्ट का जो ऐसे जो जाता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे जो जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बाय कन्वेंशन वी कैन कंसीडर हियर। तो रीजन 1 का हर एक पॉइंट जो है वह इस सीट के लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गौर से देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
minus sigma b by 2 epsilon naught. So you can take common minus 1 by 2 epsilon naught. Correct? और बचेगा क्या? यहाँ बचेगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. नो प्रॉब्लम. अब इस रीजन 2 में कोई पॉइंट आप ले लो. रीजन 2 जो है, रीजन 2 का हर एक पॉइंट सीट ए के राइट साइड में है. यानी इसका मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो देखें सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ये बराबर क्या हो जाएगा? कॉमन क्या होगा तुमको? तो कॉमन हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचा यहाँ पे सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी. करेक्ट. अब रीजन 3 में देखो, रीजन 3 जो है इसका हर एक पॉइंट सीट ए के राइट और सीट बी के भी राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सीट का जो होगा वह सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. नो प्रॉब्लम. कॉमन ले लो. 1/2 epsilon naught is common. Sigma A plus sigma B. Okay. I hope that this is an easy thing you have to understand. अब हम दो स्पेशल केस देते हैं. स्पेशल केस. केस 1 में क्या है? मान लो कि सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा बी है और ये दोनों जो है वह सिग्मा के बराबर प्लस सिग्मा, यानी दोनों सरफेस डेंसिटी का जो वैल्यू है बराबर. तो क्या होगा? तो आप बताएं क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा इस केस में E बराबर क्या होगा? कोई बताएं? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी. सिग्मा सिग्मा ऐड हो जाएगा तो लिखेंगे -1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा. करेक्ट. सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा. सो 2 सिग्मा, 2 कैंसल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई सिग्मा ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. रीजन 2 में बताएं व्हाट विल हैपन? तो सिग्मा ए सिग्मा, सिग्मा बी सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा इज 0. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0. और इसमें बताएं तो इसमें हो जाएगा सिग्मा ए की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. यानी ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अगर इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा हो और इसका भी सिग्मा हो, यानी दोनों का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बराबर हो. करेक्ट. एक और कंडीशन आप मान सकते हो. वो कौन सा कंडीशन है वो देख ले, इसको नोट कर लेना. मान लो कि सिग्मा ए, मान लेते हैं स्पेशल केस 2, सिग्मा ए बराबर है प्लस सिग्मा और सिग्मा बी बराबर है माइनस सिग्मा. सो व्हाट इज द आंसर? पहले बताए. प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, खत्म, कैंसिल कर देगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या हो जाएगा? 0 रीजन 1 में. रीजन 2 में क्या होगा? सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, एक माइनस पहले से है तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और रीजन 3 में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 0. बात समझ आया? सो व्हाट यू हैव सीन, अगर इसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो, इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के बीच में ही होगा. दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा. हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे दे कि भाई ये बताओ ऐसे. This type of question may be given also. Suppose
ये सीट है, ये सीट है, इसका है प्लस सिग्मा, इसका है माइनस सिग्मा। 2 कूलम चार्ज यहाँ पे रख दिया, आपसे पूछेगा कितना फोर्स लगेगा, तो आपने फोर्स बोलना 0। क्यों 0? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा नहीं, ना रीजन 1 में होगा ना रीजन 3 में होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? रीजन 2 में। तो इसकी जरूरत आपको कैपेसिटर में पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसको फिर से रिवाइज करो एंड यू ट्राई टू लुक एट। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, वो बचा मेरे पास। हम इस पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल। चार्ज सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और 2-3 प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कल। सो थैंक यू वेरी मच।